Awesome. Let's start the session, and this is not going to be a core session, of course. So what we are going to do is, let me lay down the agenda. So this is a part of the interview guided session as per med course. So in this sessions, what we are going to discuss is a few ways or a few tips, I could say, based on the my 6 years of experience, and I have took many interviews. So based on this experience, we will discuss a few things, like for example, how to introduce yourself. Introducing yourself is the measure points where you start your interview. But the thing is, many folks are making mistakes at this point, and then we will see how to drive the conversations, how to handle the questions that you don't know answers, because this is all are the legit questions, right? Because like you don't know everything, or I don't know everything. So we'll understand that as well, and then finally we will see how to end the interviews. So the way we are going to proceed is, I'll give you a few tips which I can share from my personal experience, and then in the next half, next half is going to be if you ask this question, that how to do this in interview, or what if interviewer asks this thing, then how to handle these things. So that is going to be a question and answer based round. So the first things I'd mention is your interview starts with your resume. Your interview is always, it's not like that, okay, hey, let's start the interview with this Rajesh, guy and we'll sorry to review his interrupt, but resume. I think your internet is quite unstable. I think because your voice is breaking. Is it just for me or is it for everyone? Is it for everyone? Yeah, Yeah, is it for for me everyone also. else? Uh, uh, Give me a sec then. Okay, good now. Hello. Yeah, now it's fine, Bhaiya. Awesome. All this thanks to Mukesh Ambani. Cool. Uh, so where I yes, on the resume part. So the resume is the first thing that we already reviewed. The resume. Uh, I guess we have resume, right? I mean, I have reviewed your resume. If not, you can just share me your resume and I'll have a look. So the first part on the resume part is your about section. So about section में क्या होता है ना कि you have to write what you uh, really are, like who you really are. तो काफी सारे लोग क्या करते हैं ना कि ओके, आई एम हाईली क्वालिफाइड पर्सनल or a developer with this years of experience, and I'm looking for a company that helps me to grow, and I can grow for the betterment of my personal as well as a business, I mean a personal as well as professional life. So these things na, this is copy pasted for from internet, right? A lot of people, like millions of people, have copy pasted this from the internet. तो ये आपको, it cannot differentiate you from others, because see, आप एक पर्सपेक्टिव से देखो, मैं रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, आप ट्राई टू थिंक फ्रॉम दिस थिंग. तो दिस इज लाइक आपको ऐसा कुछ ऐसी बोरिंग लाइंस लिखी होगी ना, तो आपको, अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, तो आपको उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचना होगा. तो ये सारी चीजें ना बोरिंग लगती है देखने में कि क्या है. कई बार, काफी बार मैं देख चुका हूँ, 100 टाइम्स मैंने देखी है, सीन इज आई एम हाईली क्वालिफाइड पर्सन एंड ऑल दिस थिंग्स. so this does not differentiate you. So what I would prefer and what I'm personally following is
you write something about yourself, okay, in a plain words, okay, you don't need to use heavy English words. That is my personal belief, is you don't need to use a chat gpt. I mean, definitely chat gpt can help you refine it, but what I prefer is keep the thing simple, because the other person who is taking your interview is a human, not the machine, right? So let's say if I want to write something about myself, what I would write in the about section, about is the mandatory, because it gives you a glimpse of your overall persona. So what I would write for myself is say, uh, I am a professional Android developer having 5.5 or 6 years of experience uh, building Android as well as a backend application. And then I could see about is to highlight your, whatever you are doing in your life. So this is clear, right? That I am an Android from the first line. This is clear that I am an Android developer. From the next line, I could write is I also create content around the Android, and I also create content around Android on social media like LinkedIn and Twitter. And so now this conveys that okay, I am content creator as well. And the third line could be, let's say, I do provide courses that have impacted the students as well as experienced developer, ranging from interns to 10 years of experience. So this shows that okay, I do provide the courses and it has an impact as well. So in this three sentence, it really summarize three or four sentences. It summarizes who you are and what you are actually doing. Okay. So I prefer something like this in the about section. So similarly, you can write about yourself. If you are writing a content on say LinkedIn, or if you are writing the blogs as well, please mention it into the about section, because that is something that will differentiate you. For example, let's say Sitam is writing blogs on a Medium, so he could write that okay, I uh, in the free time, or I am passionate about writing the blogs on the Medium as well. So, or if you are creating contents on YouTube or anywhere, I mean, you could write that as well. So this is how your about section looks like. The next thing is your experience. I'm trying to cover the beat on the resume part as well, because again that is important. So next things coming to your resume. So in a resume, what I have seen is in the usual. I know I'll tell you. I have seen one person's resume that was 6 to 7 page long. Like this is 24, right? And nobody is going to read this whole lot of things. So talking on the resume, I guess maximum 2 pages is fine. If you could, derive it into 1 page, that's fine. But maximum 2 page is enough. I can see internet connectivity issue complaint from the Shubham. Is it for everyone? Is it No, for working me, fine? I think it's No, no, okay. it's fine. Awesome. Till Thank now, you. it's fine Maybe for me, Bhaiya. awesome. Thanks. So on the resume part, 1 page is fine. If not, for example, my personal resume is a 2 page. Okay, because I had to include this thing. But I guess 2 page maximum is fine. Just one and two. So ठीक है. And talking on the experience part in the resume, what you need to mention is you need to mention what exactly you did. What people mention is okay, I work on this project, I just work on this, and they count the technologies name they have used in the project. I have used Room, Retrofit, blah blah blah, Hilt, MVVM architecture, RX, and observable Dagger, and all those things. See, these things are expected, and even if you want to mention it, yes, do it, but just a few of the technologies. What matters in the experience section is what impact you created, what you have done actually in the project. For example, instead of writing that okay, I made this what to say, I understood how the memory leaks work. Instead of writing something like this, what you can mention is I have detected and fixed the memory leak that reduced the application memory performance by 10%. Okay, sorry, I mean improve the memory performance by 10%. तो यहाँ पर क्या होता है ना कि this sentence convey that what is memory leak, how to detect it, how to fix it, as well as the way you are fixing this is improving. I mean there is some outcome. अगर कोई outcome ही नहीं है तो it doesn't matter, right?
तो आउटकम क्या है कि इट इम्प्रूव्स द 10% ऑफ योर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। तो ऐसे आपका जो एक्सपीरियंस है उसको ऐसे डिराइव करो कि आपने कुछ किया, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ किया, फिर उसके बेस पे ये आपको आउटकम मिला। ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो स्टार्टअप का ले लेते हैं। ठीक है। तो यूजुअली जैसे लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है उसमें स्टार्टअप इज अ लेंथी प्रोसेस। आई मीन काफी सारे चीजें होती है बिफोर यू सी द होम स्क्रीन। ठीक है। अगर कोई भी बड़ी एप्लीकेशन ले लो तो उसमें होम स्क्रीन पे आप यूजर्स देखेगा, उससे पहले काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो आप क्या बोल सकते हो अगर आपने उस पर काम किया है तो ऑफकोर्स कि मेरे स्टार्टअप का टाइम इतना था, मान लो कि 7-7 सेकेंड था। ठीक है। द स्टार्टअप टाइम वाज 7 सेकेंड। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये सारी चीजों जितनी ब्लॉकिंग चीज थी, ब्लॉकिंग मीन्स समथिंग दैट इज रियली रिक्वायर्ड बिफोर शोइंग द होम स्क्रीन टू यूजर। ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग को अलग किया, जो जरूरी नहीं थी उनको डिवाइड किया। फिर ब्लॉकिंग चीजों को मैंने बैकग्राउंड थ्रेड पे मान लो डाल दिया यूजिंग द कोर रूटीन्स और यूजिंग द स्टार्टअप लाइब्रेरी। राइट, एंड्रॉइड डज प्रोवाइड द स्टार्टअप लाइब्रेरी। तो उसका यूज करके मैंने फिर उसको अलग से डाल दिया। तो एप्लीकेशन का स्टार्टअप टाइम रिड्यूस फ्रॉम 7 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट कितना हुआ, 4 सेकेंड का। तो 4 सेकेंड आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। बंदा 3 सेकेंड में कोई चीज देखेगा और 7 सेकेंड में देखेगा तो इट रियली फील कि नहीं ठीक है एप्लीकेशन फास्ट है। तो दिस नोज योर कैपेबिलिटीज दैट यू कैन डू दिस थिंग्स। तो आपके प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको एक्सपीरियंस सेक्शन में आपको ऐसे लिखना है कि आपने क्या किया, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ। नथिंग कि जस्ट आप टेक्नोलॉजी लिख दो। ठीक है। दिस इज वन थिंग ऑन द रेज्यूम एक्सपीरियंस पार्ट एंड other things are pretty common like your hobbies and your if you want to use hobbies you can, but personally I don't mention the hobbies there. And yeah, photo is not required in the interview. If you edit that's fine, but it is really not required. And फिर achievements, yeah, achievements are very important. If you have some achievements, for example, personally, let's say for me, achievements say would be, let's say I have I have provided courses which helps the people to get the jobs. That could be achievements. If I had done some certification, I would mention that as well. So these are the few things you need to take care into your resume. Now moving on to the next part, that is the actual interview. Okay, so if your resume is good and let's say it's selected and you are going for your first round of your interview, first or second or third, whatever. But I'll try to provide a tips here that applies to sort of every round, all in all. So the first thing you need to tell is the interviewer will come and say that, let's say I'm taking the interview of the Shubham. So I would say, hey Shubham, this is Rajesh, and I'll introduce about myself, and then I'll say, could you please introduce yourself? So the first part is introduction, right? As formal as it may look, this is important thing. So because I won't say first impression is the last impression, but first impression really matters. Okay. So in your introduction, what you need to do is first before you know before saying anything, the first thing you need to show is that you need to show the enthusiasm. That okay, you are really into this job, you really want this job. If you could say, hey, I am Rajesh and I have 6 years of experience, and this likes a sad story, right? So it doesn't convey that okay, I really want this, or I'm really open to the conversation. So what you need to do is show the enthusiasm and introduce yourself properly. What the people does is either they stretch it up very long. I have this and I have 6 years of experience. पहले साल में मैंने ये किया, दूसरे साल में मैंने ये किया, थर्ड साल में मैंने ये किया, तो 6 तक स्ट्रेच करते हैं। 5-7 मिनट ले लेते हैं, डजंट मेक सेंस, बंदा बोरिंग हो जाएगा जो इंटरव्यू ले रहा है ना। ये सब चीजें ना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, तो बंदा बोर हो जाएगा। दूसरी चीज लोग ये करते हैं कि एकदम शॉर्ट में खत्म कर देते हैं। ठीक है, आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई एम एन एंड्रॉइड डेवलपर, डन। ठीक है, तो ना तो अपन को काफी लॉन्ग स्ट्रेच करना है, ना तो एकदम शॉर्ट करना है। अपन को अपनी कैपेबिलिटीज, आई मीन अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे उसको मीडियम रखना है। जैसे कि hey,
मान लो मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ किसी बंदे को, तो हाउ वुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ? Hey, I'm Rajesh. I have around 6+ years of experience building the Android as well as the backend applications, and I have done my graduation. If it requires, depends on the types of the job. If it requires mention graduations as well, that I have done the graduation from this and this college, and uh, I love playing with the androids, and in my free time, I would like to write the contents on the LinkedIn, on the social media, educate the people, because by heart or by nature I am an educator. So due to this, I do provide multiple courses on Android and Spring Boot or a backend, and which really helps the people to jump their journey from from students to getting a job, or if they are senior developers, they got the high paying package. So these are the few things. Again, just similar to the above sections of your resume. So in the introduction, you mention what you are doing and who you are. Okay, so not just from the technical perspective, mention these from the side perspective as well, because you know this courses and content creation has nothing to do with my Android journey, right? I mean, it has in a sense, but not directly. So but you make sure you mention these aspects as well. This shows that, okay, how you are as a personal, because interviews is more than just technical skills checking. Okay, ऐसा नहीं कि आपको वहां पर आपकी टेक्निकल स्किल्स ही चेक की जाएगी, आपका ओवरऑल पर्सोना चेक होता है। तो आप ऐसी चीजें मेंशन कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में आपका ऐसे आएगा कि हाउ यू आर एज अ पर्सन। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर बंदे ने बोल दिया ऑसम ऑसम, ठीक है, या फिर उसको सही नहीं लगा तो कुछ भी बोल दिया, डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू। फिर क्या होता है कि आपकी चेन ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट होती है। तो इंटरव्यू लेने वाले बंदे क्या करते हैं, दो टाइप्स के बंदे होते हैं इंटरव्यू लेने वाले। एक तो वो बंदे जो आपके इंटरव्यू से जस्ट पहले गूगल पे जाते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लो सीतम का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, 2 साल के बंदों के लिए कितना कौन से क्वेश्चन चाहिए, गूगल पे जाएगा वो छाप देगा, एक के बाद एक पूछने लगेगा। एक तो ए टाइप के इंटरव्यू होते हैं। दूसरे इंटरव्यूअर वो टाइप के होते हैं जिसने इतने इंटरव्यूज लिए होते हैं ना, तो उनको पता है कि कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। प्लस आई एम नॉट सेइंग कि गूगल पे जाके वो कोई बंदा चेक ही नहीं करेगा, नहीं, दैट्स अ गुड थिंग, जाओ गूगल पे चेक करो फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। बट वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप जो आंसर दोगे उसमें से वो क्वेश्चन निकलेगा। पर्सनली आई डू दिस थिंग। तो आप जो क्वेश्चन पूछे आंसर दोगे, उसमें हम अभी बाद में आएंगे डीप पे, उस पे से क्वेश्चन निकालेगा और उस पे से ही विल ट्राई टू ड्राइव द कन्वर्सेशन। ओके, फॉर एग्जांपल कि अगेन किसी ने बोल दिया, मैंने किसी को पूछा कि ठीक है आपको यू नो कोरूटीन्स राइट, so he said yes. I say, can you explain the coroutines please? So he would say, okay, coroutines are the lightweight, and coroutines are better than threads, and coroutines are they does provide the structure concurrency. So my next questions to them would be, you mentioned two things, lightweight threads and structured concurrency. Explain this to me, because what I want to understand from the interview's perspective is whether this guy just know the words or the concepts as well. And if you know he or she knows the concept, so he will explain that, okay, lightweight thread means this, and structured concurrency means this. Okay, तो दूसरे टाइप्स के जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वो ज्यादा जॉयफुल रहते हैं। ठीक है, मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किए हैं। आई मीन जहां पर भी मैंने इंटरव्यूज दिए, तो काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं ना, तो वो ऐसे आपके साथ बात करते हैं ना, यू डू नॉट इवन फील दैट दिस इज एन इंटरव्यू। पर जहां पर मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ था ना, वेर आई एम वर्किंग, दैट गाय वाज रियली वेरी वेरी कूल, तो ऐसा लगता नहीं है आपको कि आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि बंदे ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ठीक है एक्सप्लेन दिस थिंग्स, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जितना आपको आता था आपने एक्सप्लेन कर दिया। अभी मान लो कि यू डोंट नो समथिंग, फॉर एग्जांपल अगेन इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल कि उसने पूछ लिया कि ओके व्हाट इज द स्ट्रक्चर कंकरेंसी, उसका आंसर मान लो, आई मीन यू आर नॉट प्रिटेंडिंग, यू रियली नोज द थिंग, बट यू एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर कंकरेंसी। तो
ये सब हर किसी के लाइफ में होता है, हर कोई सब आंसर यू मी और हुएवर, हर किसी को हर आंसर नहीं पता होता, राइट? तो आप क्या कर सकते हो कि उसको ऐसे बोलो कि अगर आप आंसर नहीं जानते हो, दो केसेस में हो सकते हैं कि आप कंप्लीटली यू आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट इट, एंड द सेकंड केस इज यू हैव वर्क ऑन थिंग्स दैट इज सिमिलर टू दिस. For example, structured concurrency. You have no idea what the hell is structured concurrency. So how will you answer is that you can say that although I have used the core, I am familiar with the concept that coroutine does introduce, but at the moment I exactly don't know, I exactly don't have much idea on the structured concurrency, but I would love to go and explore this concept as well, because as you asked, this seems to be a very important concept. So the essence here is ये क्या दिखाता है, अगेन मोर देन टेक्निकल, दिस शोज हाउ यू आर. तो ये आंसर क्या दिखाता है कि एक तो आपको पता नहीं है, यू नो आपको पता नहीं है, बट बंदे ने पूछा है और ये इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन लगता है तो आप उसको जाके सीखोगे. तो दिस शोज कि ओके, इवन इफ यू डोंट नो समथिंग, यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न इट. ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं ना कि बोल देते कि आई डोंट नो, तो उसमें वो नहीं दिखता, क्या बोलते हैं, वो दिखता नहीं है ये सामने वाले बंदे को कि ठीक है, ये दिस गाय और गर्ल इज विलिंग टू लर्न थिंग्स. ठीक है, और कॉर्पोरेट में यही होता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता, दैट्स फाइन, ठीक है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, बट यू शुड बी विलिंग टू लर्न द थिंग. तो आप इंटरव्यू भी जहाँ दे रहे हो ना, वहां पर ये आप बंदे को लगना चाहिए कि ओके, यू आर विलिंग टू लर्न द थिंग्स दैट यू डोंट नो. ठीक है, तो आप उसको ऐसे हैंडल कर सकते हो. दूसरा केस ये है कि you don't know the exact answer, but you have worked on similar concept. For example, you and interviewer are talking on the coroutines, and the interviewer asks, can you explain the state flow to me? Okay, you never work on the state flow, you are Java guy, and your company is not going to adopt the Kotlin, so you never work on this, that's fine. What you can say is, you from the state flow concept, this is it implements the observer subscriber pattern. You have worked on the Java, you know how to use the live data, right? You have worked on it. What you can say is, due to my project's nature, I have never really worked on the state flow, but what I have worked on is a similar concept, is the live data, and I can go and explain bit on the live data. Then you start explaining about the live data, that okay, live data is observer subscriber pattern, because these things are similar, right? And whenever the value change, the subscriber will be notified that there is a new value change. So this thing same applies to live data and the state flow. So what matters here is the concept. ठीक है, क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइव डेटा है या स्टेट फ्लो, क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्या है उसका. ऑब्जर्वर सब्सक्राइबर पैटर्न है, व्हेनेवर द वैल्यू चेंज, ऑब्जर्वर सब्सक्राइबर विल गेट द न्यू वैल्यू. तो ये सेम कंसेप्ट है. आप स्टेट फ्लो देख लो, आरएक्स का ऑब्जर्वेबल देख लो, या कोटलिन का स्टेट फ्लो देख लो, या लाइव डेटा देख लो, कंसेप्ट सब जगह पर सेम है. तो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, सिंटेक्स तो किसी को भी सिखाई जा सकती है. ठीक है, तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो कि मैंने ये किया है, ये नहीं किया है. ठीक है, दूसरा कोई एग्जाम्पल हम ले ले तो लेट्स से रेट्रोफिट का अपन ले सकते हैं, या फिर इमेज लोडिंग लाइब्रेरी का. तो वो मान लो वो बंदा पूछता है कि हाउ टू यूज द कैशिंग इन अ ग्लाइड. ठीक है, उसने पूछ लिया कि हाउ टू यूज द कैशिंग इन अ ग्लाइड. तो मान लो आपने ग्लाइड पे काम ही नहीं किया, आपने कोयल पे काम किया है. कोयल, राइट, कोयल इमेज लोडिंग लाइब्रेरी. तो यू कैन से दैट ठीक है, ग्लाइड पे तो मैंने काम नहीं किया, बट मैंने कोयल पे काम किया है, एंड आई नो हाउ टू यूज द कैशिंग मैकेनिज्म. कोयल ये क्लासेस प्रोवाइड करता है, इसको हम ऐसे ऐसे करके फिर उसको इमेज को कैश कर सकते हैं. तो आई बिलीव similar concepts would apply to the glide as well, but I'm eager to learn this concept from the glide perspective as well. तो वो अगेन छोटी चीज है बट इम्पोर्टेंट चीज है. आपको वो आपके आंसर में वो पर्सपेक्टिव डालना है कि आई एम ईगर टू लर्न दिस थिंग्स. मेरे को अभी नहीं पता है, बट आई एम ईगर टू लर्न दिस थिंग. ठीक है, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ना, उसमें बंदे ने मुझे, काफी अच्छा बंदा था,
और ऐसी 4-5 चीजें पूछी थी। आई मीन काफी सारों के मैंने आंसर दिए, 4-5 ऐसी चीज थी जो अपन डिस्कस करेंगे फिर। तो उसके आंसर मुझे नहीं पता थे टू बी फ्रैंक, तो क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कभी ऐसा। तो फिर मैंने बोला ठीक, ऑसम, राइट, आई मीन कि मुझे नहीं पता बट ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैंने क्या किया था पता है, लाइव इंटरव्यू में मेरी स्क्रीन शेयर थी, लाइव इंटरव्यू था, मैं नोटपैड में जाके लिख रहा था कि व्हाट ही इज आस्किंग, आई मीन जिसका मुझे पता नहीं है। तो इट सॉर्ट ऑफ कन्विंस कि ठीक है मैं लिख रहा हूँ, दैट मीन्स इंटरव्यू के बाद में जाके सर्च भी करूंगा। तो मैं लाइव इंटरव्यू पे मेरी स्क्रीन शेयर थी, मैं नोटपैड पे जाके लिख लिया जो मुझे नहीं आया था, ताकि मेरे को वो सर्च करना था। तो आपका वो पर्सपेक्टिव भी दिखना चाहिए इंटरव्यू में कि यू आर रियली विलिंग टू लर्न द थिंग। ठीक है, ये हो गया अपना। और तीसरी बात ये है, मैं कब से बोला जा रहा हूँ, आई गेस यू फॉक्स आर नॉट बोर्ड, राइट? बोर हो गए सब क्या, या कंटिन्यू करूँ मैं? नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए। But I Awesome. want to know what was the feedback from like interviewer after that. ठीक है, विल डिस्कस इट एज अ Okay. सेपरेट, आई मीन विद इन दिस सेशन, बट जो मेरे को कवर करना है वो मैं कवर कर लूँ, फिर मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में अपन बात करेंगे। Sure. थैंक यू। One of the nice questions were asked. वन ऑफ द Nice questions were asked. Sorry for my voice. राइट राइट राइट, awesome. ठीक है, you know Shubham wants me to get trapped. No, actually I want to know that matlab, Right. what is the interviewer perspective that about you have even not able to answer but you have the learning capabilities, but what was the interviewer perspective that he showed towards you? राइट राइट राइट, डेफिनेटली विल डिस्कस। ठीक है, वो अपन एज अ सेपरेट, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो उसने मुझे पूछे थे, मुझे रियली इंटरेस्टिंग लगे, मुझे आंसर नहीं पता थे, एंड वी विल सी यू नो हिज पर्सपेक्टिव एज वेल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे को ये कवर करना था कि एनर्जी, अगेन एनर्जी इज द कंटेजियस, यू फॉक्स ऑलरेडी नो, राइट? तो अगर इंटरव्यू में आप एनर्जी दिखाओगे ना, तो वो बंदे को भी लगेगा कि नहीं ठीक है ये बंदा सही है। आप ऐसे स्टेड होके देवदास बन के बैठोगे, ठीक है, क्वेश्चन जैसे आते गए बोलते गए, ऐसे नहीं करना। मैं भी पर्सनली जहाँ पर भी मैं भी इंटरव्यू देता हूँ, एनर्जी आपको दिखानी है कि ठीक है, नहीं नहीं बढ़िया है, एक्स्ट्रा वर्ड यूज करो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करो। इंटरव्यूअर की को अच्छा पूछता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करो, वाओ दिस इज वेरी नाइस, यू नो आई नेवर थॉट अबाउट इट बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू नो मोर फ्रॉम यू। बंदे को क्या लगेगा, ठीक है मेरी भी वैल्यू है, मेरे को ये पूछ रहा है कुछ, और एनर्जी भी दिखेगी कि नहीं काफी अच्छा बंदा है और इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन के बारे में मैं आई टेल यू वन थिंग, ठीक है, मैं मेरे जब करियर स्टार्ट थी ना, मैं आई वाज रियली शाई, ठीक है, मैं लोगों से बात ही नहीं करता था, आई वाज रियली शाई, व्हाट वी से इंट्रोवर्ट, राइट? बट फिर जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर किया थिंग्स, दूसरे सिटीज में गया, यू नो आई वाज I'll be very frank, while I was in Gujarat, you know I was sort of a shy and I was afraid to communicate, but I left the Gujarat and I went to Bangalore and Kerala and lot of cities. तो एक बात मेरी समझ में आई कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आई मीन नॉट जस्ट फॉर प्रिंटिंग मनी, बट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द सेंस दैट यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, यू विल हैव टू टॉक, यू विल हैव टू स्पीक। तो फिर मैंने क्या किया कि लोगों से धीरे धीरे बात करना चालू किया, और फिर बढ़ता गया। तो जो मेरी लास्ट कंपनी में, तो मेरी ऐसी इंप्रेशन थी ना कि दिस गाय इज समवन लाइक हु डोंट लाइक द साइलेंट पीपल। आई मीन मेरे आजू बाजू में 5 लोग हो गए ना तो मैं बोर हो जाऊंगा, अगर साइलेंट लोग है तो क्या है यार कुछ बोलते नहीं है। तो कम्युनिकेशन चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन, ये एनर्जी होती है ना, वो सामने वाले बंदे पे अफेक्ट करती है। आप अगर किसी को सामने से जाके हाय हेलो करोगे कंपनी में, तो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो सेम चीज अप्लाइज टू द इंटरव्यूज। इंटरव्यूअर आपसे जो भी पूछ रहा है, आप उससे बात करो, उसको कॉम्प्लीमेंट करो कि अगेन दिस इज आर्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो इट विल रियली हेल्प यू इन पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, इंटरव्यू इज जस्ट वन ऑफ देम। तो उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं भाई सही है, बंदे में एनर्जी तो है, मुझे कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। और एक्स्ट्रा वर्ड मैं तो बोलता हूँ यूज करो ही करो। जैसे अगर
उसने कुछ पूछ लिया और आपने आपने आंसर भी बता दिया, आपके पास और भी कुछ शेयर करने को है, तो आप क्या बोलोगे कि यू नो व्हाट, यू नो अपार्ट फ्रॉम दिस आई वेंट अ स्टेप बियॉन्ड एंड आई इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग्स इन दिस वे एज वेल। ठीक है, फिर आप उसको आपने जो भी इम्प्लीमेंट किया है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो बंदे ने मुझे पूछा है कि आप बैकएंड के बारे में जानते हो। ठीक है, मेरे इंटरव्यू में उसने पूछा कि आप बैकएंड के बारे में जानते हो। मैंने बोला हाँ मैं बैकएंड के बारे में जानता हूँ एंड आई नो स्प्रिंग बूट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब मैं मेंशन कर दूंगा जो यूजुअल होता है। उसके बाद मेरे को स्टॉप नहीं करना है, मेरे को उसको दिखाना है कि ठीक है मैंने कुछ किया है, ज्यादा नहीं बट कुछ। तो मैं उसको बोलेगा कि यू नो व्हाट, बेस्ड ऑन आई रियली लव द बैकएंड एज वेल, आई हैड created a 2 mega projects, one for the social media, one for buyer selling platform, and I have used a lot of concepts there, and I really love what the capabilities backend does provide. तो ऐसे ऐसे वर्ड्स ना आप सीख लो, मैं तो बोलता हूँ वर्ड्स, आई मीन हाउ टू यू नो ड्राइव द एंगेजमेंट। इंटरव्यू का एंगेजमेंट ड्राइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इंटरव्यूअर्स की ही नहीं है, बंदे की भी है, आपको भी थोड़ा बहुत ड्राइव करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ड्राइव करोगे ना तो उस बंदे को भी मजा आएगा कि नहीं बंदे में एनर्जी है एंड ओके सही बंदा है। ठीक है, तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, आई विल टेल यू वन रियल थिंग। इससे इम्पैक्ट ये होगा कि आपको मान लो कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए, इंटरव्यूअर विल इग्नोर इट इन द सेंस दैट बंदा अच्छा है, जो नहीं आया वो हम सिखा देंगे, बट बंदा अच्छा है इसके साथ काम करने का मजा आएगा। तो ऐसे बनो बंदे, आई मीन कि इंटरव्यूअर को लगे कि ठीक है इसके साथ काम करने का मजा आएगा, भले ही इसको कुछ नहीं आता हो। आई मीन आना तो चाहिए बट मान लो 3-4 क्वेश्चंस नहीं आए, 4-5, दैट्स फाइन। तो ये इम्पेक्ट करेगा इंटरव्यू से। आप कभी जाओ, नोटिस करना, एनर्जी दिखाना, इट विल रियली इम्पेक्ट इट। तो फीडबैक में भी आपकी ये झलकेगा कि ठीक है। और कमिंग ऑन टू एग्जिटिंग द इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू एग्जिट करना है ना, तो इंटरव्यूअर सब किसी ने फेस किया होगा कि इंटरव्यूअर पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, एंड अगर हम ऐसे बनेंगे कि नो आई हैव नो क्वेश्चन थैंक यू, लीव मीटिंग कर दिया, डन। ऐसे इंटरव्यू एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, इंटरव्यू एग्जिट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज अगेन उसको बंदे को लगना चाहिए कि वो स्पेशल है, कि और लाइक झूठी तारीफ नहीं, इन फ्रैंकली। तो आपको मान लो कुछ कंसेप्ट अच्छे लगे तो आप उसको बोलो कि थैंक यू फॉर हैविंग अ रियली गुड टाइम। उसको अप्रिशिएट करो कि आई नेवर फेल्ट दिस वाज एन इंटरव्यू, आई फेल्ट इट वाज अ जॉयफुल कन्वर्सेशन and I really appreciate you. Thank you for taking the interview in such a way, and I also learned a few things from you. For example, I learned how Stateflow works, or I learned how these things work. So thank you for adding valuable knowledge for me as well. And फिर अगर आपके उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ ही डालो कि जैसे कंपनी में फिर इसका मतलब नेक्स्ट राउंड क्या होगा, या फिर वो फीडबैक तो देखो, फीडबैक तो एक बात मैं बोलूं, वो फीडबैक बंदा आपको ऑन द स्पॉट नहीं देगा कि यू आर सेलेक्टेड और नॉट, वो तो नहीं देगा और कोई नहीं देता यूजुअली, क्योंकि दे हैड टू डू गिव दिस टू एचआर और रिक्रूटर। बट आप उसको ऐसे पूछो कि जो चीज आपको नहीं आई तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। उसमें भी अगेन 2 पार्ट्स होते हैं। एक टाइप के बंदे होंगे जो बोल देंगे कि आप इंटरनेट पे जाके देख लो, दूसरे टाइप के बंदे होंगे जो आपको बोलेंगे कि ठीक है दिस इज हाउ इट वर्क, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इट। तो इंटरव्यू एंडिंग भी आप ऐसे करो कि ऐसे ग्रीटिंग्स करो कि ठीक है थैंक यू एंड आई नेवर फेल्ट दिस वाज एन इंटरव्यू। फिर आप उसको क्वेश्चंस हो तो पूछ लो, फिर से कि ओके थैंक यू एंड हैविंग अ गुड डे एज वेल। ग्रीटिंग्स कभी मत भूलना कहीं पर भी, अगेन पार्ट ऑफ द एसेंशियल लाइफ हैक्स। तो दिस इज हाउ यू एंड द इंटरव्यूज। ठीक है, तो ये चीजें मुझे कवर करनी थी, हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ टू ड्राइव द कन्वर्सेशन, जो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता है, और इंटरव्यू एंड कैसे करना है। तो और रेज्यूम का हमने देखा, तो ये चीजें मेनली मेरे को कवर करनी थी, बिकॉज मैंने पर्सनली ये देखा है कि ये लोगों में द पीपल आर लेकिंग दिस थिंग। तो आप लोग लेक ना करो, इसलिए आई वांटेड टू डू दिस थिंग। ठीक है, एनी क्वेश्चन
इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई सजेशन कि राजेश नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यू आर रॉन्ग, आई मीन आई एम फाइन बिकॉज आई डोंट नो एवरीथिंग, राइट? तो हाय राजेश, एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है यस मेरा। श्योर। बेसिकली आपने बोला था कि आप अपने इंट्रोडक्शन से इंटरेस्ट शो कर सकते हो कि जॉब के लिए दैट इज हाँ यू आर लुकिंग फॉर, लेकिन राइट नॉर्मल इंट्रोडक्शन में आपने बोला कि बेसिकली आप ये अपना नाम वाम बताओ और अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, एंड इट शुड नॉट बी टू लार्ज एंड इट शुड नॉट बी टू स्मॉल, इट शुड बी बिटवीन मतलब 3 to 4 minutes, एंड हाँ बेसिकली हाँ अपनी क्वालिफिकेशंस और अपनी जो भी अचीवमेंट्स वगैरह बता दो जो रेज्यूमे में लिखी हुई है, या फिर जो रेज्यूमे में नहीं लिखी है वो भी एक दो ऐड कर राइट सकते हो। राइट। लेकिन वो इंटरेस्ट कैसे शो करेंगी, दैट मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे मैं इंटरेस्ट शो कर सकूं अपने इंट्रोडक्शन से, या फिर ओके, कुछ ऐसे इंटरेस्ट, अ, यस प्लीज कंटिन्यू। तो इंटरेस्ट इन द सेंस कि आपको इंटरेस्ट शो करना है वो जॉब में, राइट? यस राजीव। ओके ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना कि मान लो मैं जा रहा हूँ इंटरव्यूज देने के लिए, कोई अच्छी कंपनी है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई अच्छी सी कंपनी है, और वो जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है उस पे आपने मान लो भी किया है, नहीं भी किया है पर से, तो सिमिलर टेक्नोलॉजी पे काम किया है, तो आप जब इंट्रोड्यूस करा रहे हो ना, तभी वो मेंशन कर सकते हो कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल किस पे, ओके, मेमोरी लीकिंग पे मान लो काम किया है प्रोफाइलर पे, ठीक है, और वो कंपनी में भी काफी मतलब वो से काम चल रहा है, आई मीन आपको ऐसे पता तो नहीं चलेगा कि वो मेमोरी लीकिंग पे काम कर रही है, बट जो जॉब डिस्क्रिप्शन पे जो काम होता है ना, उसमें मान लो उसमें अगर रिक्वायर्ड है कि यूजर शुड नो, डेवलपर शुड नो हाउ टू डिटेक्ट एंड एनालाइज एंड फिक्स द मेमोरी लीक, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मेमोरी लीक का। तो इंट्रोडक्शन में ये आप बोलो कि आई हैव आल्सो वर्क्स ऑन detecting and fixing the memory leak, and yes, by the way, I have seen these things in the job descriptions as well, so that means it sounds a perfect match, and I'm really looking to utilize my memory leaking knowledge to improve the applications that we are going to build together. स्टार्टिंग में ही आपको उसको बोल देना है कि हम साथ में ही काम करेंगे, ठीक है? ऐसे हाँ, है ना, उसको ऐसे ही रिव्यू दे देना है कि आप उस कंपनी के पार्ट हो गए हो, मेरे को तो लगता है कि मैं इस पे काम करूंगा, ऐसे स्टार्टिंग में उसको बोल देना है। तो ऐसे आप कंसेप्ट को उठा के डाल दो, उसमें लिखा है कि बंदे को एमवीवीएम अच्छे, राइट, सेम फॉर गॉट द इट पॉइंट। एमवीवीएम, राइट। तो अगेन दूसरा एग्जांपल कि एमवीवीएम भी अगर उसको चाहिए तो उसको बोलो कि एमवीवीएम पे मैंने अच्छे से काम किया है, आई रियली नोज द कंसेप्ट, और दिस कंपनी से एक्स वाई जेड ऑल्सो यूटिलाइज द एमवीवीएम, तो इट साउंड्स अ परफेक्ट मैच, एंड फिर काम करने का मजा आएगा साथ में। ऐसे बंदे को ऐसे ही कर दो कि आपको साथ में ही काम करना है ओके ओके ना, ग्रेट, है ना? थैंक्स। ऑसम, ठीक है। अ, और कोई क्वेश्चन? भैया, I have one question यस प्लीज। that for me I am asking that or just like it almost 1.5 year now I am working on Flutter, and my training at my first company where I am working as full time, it was from Flutter. That I have explained to you that why they choose Flutter and all. राइट तो या राइट राइट। अगर मैं नेक्स्ट कंपनी में जाता हूँ तो वहां पर मैं चाहता हूँ कि नेटिव एंड्रॉइड में जाऊँ, तो मैं टेक स्विच कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो रिज्यूमे में अगर मैं एक्सपीरियंस शो करूंगा वो तो फ्लटर में ही होगा ना। तो वहां पे मैं जाके कैसे अपना मतलब जो एंड्रॉइड मेरे को अच्छा लगता है, मैं एंड्रॉइड में अच्छा हूँ, मेरे को ये पता है, वो मैंने किया है कुछ अपना प्रोजेक्ट, तो वो मैं कैसे शो करूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ और में था, मैं जा रहा हूँ कुछ और डोमेन में। ठीक है। तो इस केस में मैं आपको क्या बोलूंगा ना कि देखो, चीटिंग की बात तो नहीं बोलूंगा मैं, बट यू रियली हैव द एक्सपीरियंस इन नेटिव एज वेल, राइट? आई नो फॉर श्योर कि आपको नेटिव में भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो राइट? है भैया, लेकिन वो कॉलेज टाइम में था, कोई फुल टाइम नहीं था, अब वही प्रॉब्लम है। अच्छा, बट मतलब आप कुछ साइड प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे, आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत साइड तो। प्रोजेक्ट्स जितना मतलब भैया मतलब मेरे स्पेयर टाइम में जितना मैं एंड्रॉइड एक्सप्लोर करके थोड़ा बहुत छोटा मोटा साइड प्रोजेक्ट बना लिया। अब देखिए वो तो इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं होने वाला, हाँ बहुत हाँ हाँ, ज्यादा। राइट राइट, वो तो नहीं होंगे।
तो मैं क्या बोलता हूँ आपको कि आप मान लो जिस कंपनी में आप रिज्यूमे में कैसे मेंशन कर सकते हो कि आपने फ्लटर पे काम किया है, वो तो मेंशन करना ही करना है क्योंकि दैट वाज योर प्राइमरी डोमेन। बट आपने मान लो कंपनी में थोड़ा बहुत एंड्रॉइड किया है या थोड़ा बहुत साइड प्रोजेक्ट्स में भी किया है, तो उसको भी इसमें डाल दो थोड़ा, ठीक है, इसको मिक्स अप Okay. कर दो कि मैंने फ्लटर में ये किया है और कंपनी में ऐसे बोल दो कि कंपनी में ही मैंने नेटिव पे भी इतना काम किया है। जैसे कि आई वुड सजेस्ट कि आप कोई मान लो एक आध प्रोजेक्ट बना लो अच्छा सा, तो आपको कंसेप्ट पता लग जाए, व्हाट इज एमवीवीएम, फ्लटर, यू नो, दिस स्टेट फ्लोज एंड को रूटीन्स एंड दोस थिंग्स। तो फिर आप प्रोजेक्ट्स बना लो, कंसेप्ट पता लगा लो, फिर आप वही कंपनी में मेंशन कर दो कि मैंने इस पे भी काम किया है, ठीक है। तो आपका दोनों हो जाएगा, फ्लटर भी हो जाएगा, नेटिव भी हो जाएगा। अगर आप टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट कंपनी में नेटिव में, तो नेटिव को ऊपर रखो, फ्लटर को नीचे रखो, ठीक है, क्योंकि Okay. ये दिखाता है कि आपने काम किस पे किया है। तो अगर आपने साइड प्रोजेक्ट बना लिए तो डेफिनेटली आपको कंसेप्ट भी पता होंगे, तो वो बंदा जो भी पूछेगा वो आपको आंसर आ जाएंगे। तो सेम कंपनी में आई वुड रिकमेंड कि दोनों ऐड कर दो, नेटिव एज वेल एज अ फ्लटर, और उसको बोलो कि मैंने फ्लटर पे भी काम किया है, बट पर्सनली फ्लटर में मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि लाइक फ्लटर, यू नो, यूजुअली फ्लटर एप्स डोंट मैच द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटिव। तो इसकी वजह से आई वांट टू, यू नो, शेप माय करियर इनटू नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो फिर वो बंदा समझ जाएगा। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑसम, ठीक है, ऑसम, नो मेंशन। और कोई क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव? मेरा वाला भी अपन कवर करेंगे, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू सी अरुण, अभिनव, राहुल, संस्कृति, ऑल गुड फॉर यू folks? Yeah, everything is good. Awesome. ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो व्हाट शुभम वाज आस्किंग टू मी, लाइक व्हाट वाज द फीडबैक्स ऑफ द इंटरव्यूअर, राइट, बेस्ड ऑन माय रिसेंट इंटरव्यू। तो यू नो आई विल शेयर अ फ्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरा जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था ना, ही वाज वेरी टैलेंटेड गाय, वेरी टैलेंटेड। तो उसको उससे काफी जाके अंदर जाके वो मतलब काम किया है, ठीक है। तो और मैंने भी इतना एंथुसियाज्म दिखाया, तो फिर उसने भी मुझे ऐसे ऐसे फंडे पूछ लिए कि ये कैसे करता है, ये कैसे करता है। जैसे कि आई विल गिव यू वन एग्जांपल, reified keywords. How many of you know the reified keywords in a Kotlin? You know the reified? I'll share, you know, reified ये कीवर्ड करके है, किसी को पता है? reified करके एक कीवर्ड है कोटलिन में, ये वाला। Aware about this? No. राइट, ठीक है। तो मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ कोटलिन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की। we'll learn. Yes, this is the, you know, this is the enthusiasm I need. We will learn. Awesome. That is what I learned today. Awesome man. Yeah, this देखो मेरे पे भी इफेक्ट आया ना डायरेक्टली, अपन अपना तो डायरेक्ट इंटरव्यू भी नहीं है, बट मेरे पे भी इफेक्ट आया ना कि नहीं ठीक है, ये बंदा सीखने को रेडी है। तो इट इफेक्ट दिस आर, ये लाइफ हैक्स है, छोटे छोटे है, छोटे ही, बट इसकी इम्पैक्ट बड़ी है, ठीक है। तो वो बंदे ने मुझे पूछ लिया कि हमारी बात हुई, उसने बोला रीफाइड कीवर्ड। तो रीफाइड में एक यूज बता देता हूँ आपको शॉर्ट में कि इन जावा देयर इज द कांसेप्ट ऑफ अ टाइप इरेजर। तो आपका जो टाइप क्लास का टाइप्स होता है, वो यूजुअली आप रन टाइम पे मान लो आपको चेक कर रहे हैं कि ये इस टाइप क्लास का इंस्टेंस है या इस क्लास का। तो अगर आप कोई मान लो कलेक्शंस यूज कर रहे हो, लिस्ट या ऐसा कुछ, और आप जावा में देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड टाइप इरेजर, तो आपके टाइप्स इरेज हो जाते हैं, ठीक है। तो रन टाइम पे यू कैन नॉट गेट कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस क्लास। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए कोटलिन इंट्रोड्यूस दिस वर्ड कॉल्ड रीफाइड। तो रीफाइड जिस फंक्शंस में होगा वहां पर यू कैन चेक द टाइप्स एट द रन टाइम एज वेल। तो वो बंदे ने मुझे पूछ लिया, मैंने बोला ठीक है, दिस इज हमारी ये बात हुई ऐसे थोड़ी डीप में, तो मैंने बोला कि यूजिंग द रीफाइड यू कैन हैव द टाइप।
तो फिर उसने बोला कि रीफाइड अपन कैसे लिखते हैं यूजुअली, मैंने बोला इनलाइन फंक्शन रीफाइड, तो बोला इनलाइन की वहां पर क्या जरूरत है। तो आई वाज लाइक कि है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो रीफाइड आप जहां पर भी देखोगे ना वहां पर इनलाइन फंक्शन होगा। तो उसका क्वेश्चन ये था, उसको ये समझना था मेरे कि इनलाइन की वहां पर क्या जरूरत है। मैंने सोचा साला ये तो कभी सोचा ही नहीं, रीफाइड का यूज मेरे को पता है बट वाई इनलाइन इज देयर। और इनलाइन का भी इंडिविजुअल यूज मेरे को पता है कि इनलाइन कीवर्ड मींस कंपाइलर विल सिंपली कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड हियर, ठीक है। इनलाइन आई नो, रीफाइड आई नो, बट वो दोनों साथ में ही क्यों है। उसने बोला आप देख नोटिस करोगे वो दोनों ऑलवेज साथ में होते हैं। मैंने बोला सही है। तो बोले साथ में ही की क्या जरूरत है उसकी। तो ये क्वेश्चन सिमिलर हो गया। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ। कंपोज में रिमेंबर एंड स्टेट है, राइट, रिमेंबर एंड म्यूटेबल स्टेट, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, बट दे प्ले नाइसली विथ ईच अदर, तो वो दोनों साथ में होते हैं। आप उसका रीजन यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट एज वेल। तो सिमिलरली उसने बोला इनलाइन और रीफाइड साथ में क्यों होते हैं। मैंने बोला ये नहीं पता भाई मेरे को कि ये मतलब साथ में ही ऑलवेज क्यों होते हैं, ये सोचा ही नहीं कभी मैंने। तो बोले ठीक है। फिर मैंने बोला आप ही बता दो, मेरे को तो आइडिया नहीं, मेरे को भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो फिर उस बंदे ने मुझे आंसर दिया कि inline means you will just copy paste, compiler will copy paste the code at the call site। तो जब और आपका कोड जब कॉल साइट पे है दैट मीन्स यू आर नॉट मूविंग टू अदर फंक्शन। तो इसकी वजह से कॉल साइट पे ही आप क्लास का इंस्टेंस चेक कर रहे हो। तो इसीलिए रीफाइड अलोज यू टू गेट द इंस्टेंस एट द रन टाइम, बिकॉज आपका कोड है वो कॉल साइट पे ही कॉपी हो रहा है। ठीक है, मेरी कुछ बातें जो मैं भी बोल रहा हूँ अगर आउट ऑफ बाउंड जा रही है तो थोड़ा इंटरनेट पे जाके देख लेना एंड इसको ट्राई रिकॉर्डिंग से कनेक्ट करना कि व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपको इनलाइन सीखना पड़ेगा, आपको ये रीफाइड सीखना पड़ेगा। तो उसने मुझे सिखाया। फिर उसने मुझे एक और मैं बात करता हूँ कि एक असाइनमेंट राउंड भी था उसमें मेरे को एप्लीकेशन नाइस कंसेप्टफुल एक एप्लीकेशंस मेरे को बनानी थी यूजिंग द एमवीवीएम एंड रेप दिस थिंग्स ऑल। तो फिर उसमें क्या हुआ कि मेरे को क्या लिखना था मोशी का एक मिनट, मेरे को क्या लिखना था, क्या बोलते हैं उसको, टाइप आई गेस दैट वाज अ टाइप कन्वर्टर फॉर मोशी, ठीक है। टाइप कन्वर्टर आई गेस, हाँ टाइप कन्वर्टर्स यू नो राइट, एक टाइप से दूसरे टाइप में जब अपन टाइप कन्वर्ट करते हैं, मान लो कि मेरा कोई कस्टम क्लास है, मोशी डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट। टाइप कास्टिंग, नो टाइप कन्वर्टर जैसे रूम में होता है। मान लो कि आपको आपका कोई फील्ड है एंटिटी का, रूम डेटाबेस में मैं बोल रहा हूँ, आपका कोई फील्ड है एंटिटी का, उसका टाइप है इंस्टेंट, java.time.instant और java.util.date। तो अभी डेटाबेस हैज नो आइडिया हाउ टू स्टोर द डेट टाइप। डेटाबेस क्या पता है उसको, लॉन्ग कैसे स्टोर करते हैं, इंटीजर कैसे स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग या एरे कैसे स्टोर करते हैं, उसको बेसिक्स पता है। डेटाबेस को नहीं पता कि डेट का कोई अगर फील्ड आए तो उसको कैसे स्टोर करे। जैसे मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स से क्लास यूजर, ये आपका हो गया @entity, ठीक है। तो यहाँ पर वेल आईडी इक्वल टू लॉन्ग, अरे इसको मैं एडिट कर देता हूँ एक बार फिर से, वेल यूजर नेम इक्वल टू स्ट्रिंग, वेल created it इक्वल टू इंस्टेंट, ठीक है। ऐसी मेरी कोई एंटिटी है जो मैंने चैट में शेयर की है। तो एक यूजर है, उसके 3 प्रॉपर्टीज है, आईडी दैट इज लॉन्ग, यूजर नेम दैट इज स्ट्रिंग एंड क्रिएटेड एट प्रॉपर्टी दैट इज ऑफ टाइप इंस्टेंट, java.time.instant, ठीक है। तो डेटाबेस को नहीं पता है कि व्हाट इज दिस इंस्टेंट, इट डज नॉट नो हाउ टू स्टोर इट। तो आप रूम को क्या करोगे, आप रूम को एक टाइप कन्वर्टर बना के दोगे दैट विल टेल्स द रूम कि इंस्टेंट से स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है टू स्टोर इनटू डेटाबेस। इन डेटाबेस से जब स्ट्रिंग आएगी तो उसको वापस इंस्टेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एक टाइप को हम दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंस्टेंट टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग टू इंस्टेंट। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं टाइप कन्वर्टर। तो इट्स मेक सेंस राइट बेस्ड ऑन द चैट।
सबको पता पड़ गया? हाँ। ओके, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि मोशी में भी ऐसे टाइप कन्वर्टर्स होते हैं। तो उसने मुझे पूछ लिया, क्या पूछा था, कुछ तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मोशी का कि हाँ, एक मिनट, मोशी का ही था, यस। तो मेरे को जो रेट्रोफिट का मैं इंस्टेंस बना रहा था ना, मुझे उसमें टाइप कन्वर्टर्स की जरूरत थी। मैंने टाइप कन्वर्टर्स बना भी लिए, टाइप कन्वर्टर्स बना भी लिए, ठीक है। फिर मैंने टाइप कन्वर्टर मोशी का बनाया और प्लग्ड इन इनटू द रेट्रोफिट में, जब जहां पर मैं रेट्रोफिट में जहां पर मोशी की कन्वर्टर फैक्ट्री डालते हैं ना अपन रेट्रोफिट क्रिएट करने के टाइम, वहां पर डाल भी दिया, ठीक है। ऑल गुड, असाइनमेंट वाज वर्किंग। उसने मुझे बोला कि एग्जैक्टली लेट मी रिमेम्बर इट, क्या था कि जो मेरा टाइप कन्वर्टर था उसमें कुछ चीज तो बोले आपने ऐसे क्यों नहीं किया। बोले ऐसा पहले उसने बोला बोले ऐसा हो सकता है, मैंने बोला हाँ हो सकता है। तो मैंने बोला, बोले फिर आपने ऐसा असाइनमेंट में क्यों नहीं किया। तो आई सेड कि मैंने ट्राई करी थी, बट वो कुछ तो एरर्स दे रहा था। मैं आपको एरर्स भी दिखाता हूँ, ऐसे बोल के मैंने उसको वो कोड भी दिखाया जो मैंने लिखा था, कि ऐसे ऐसे कोड लिखा था, ऐसे ऐसे मैंने ट्राई करी, बट वो एरर्स दे रहा था और असाइनमेंट सबमिशन में मैं थोड़ा जल्दी था, तो फिर मैंने मतलब वो छोड़ के ये वाला यूज कर लिया, ठीक है। तो तब उसने बोला कि ओके, ठीक है। तो ऐसी 4-5 क्वेश्चंस के बारे में हमारी बात हुई थी। एक तो आई थिंक डेटा क्लास का कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हाँ, डेटा क्लास का एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि अ, मेरे पास एक डेटा क्लास है, अ, उसमें मुझे डेटा क्लास का क्रिएशन रिस्ट्रिक्ट करना है। मान लो कि डेटा क्लास मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, एक डेटा क्लास, इसके ऊपर मैंने काफी अच्छा फिर पोस्ट भी लिखा था लिंक्डइन पे, अ, अ, और यूजर नेम स्ट्रिंग, मेरे पास एक रेगुलर डेटा क्लास है, तो फील्ड से आईडी एंड यूजर नेम। उसमें मुझे चेक करना है कि अगर यूजर नेम मान लो 5 कैरेक्टर से, मान लो 5 कैरेक्टर से लॉन्ग है, तभी मैं इसको असाइन करूंगा, तभी मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगा। अदरवाइज आई विल थ्रो एन एरर कि नहीं नहीं हो सकता है। ऐसी कंडीशन मुझे डालनी है और मुझे डेटा क्लास ही यूज करना है। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि ओके, कि हमारी बात हुई। फिर उसने बोला कि आप कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना के डेटा क्लास के अंदर एक फंक्शन बना दो, कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, जो फंक्शंस आपको आई मीन फिर उसने बोला, उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो फिर उसने बोला ये डेटा क्लास है। फिर उसने बोला कि आपने एक डेटा क्लास ऐसे बना दिया, वेल यूजर इक्वल टू दिस, मान लो कि एक लेजिट यूजर बना दिया थ्रू कंस्ट्रक्टर कि आईडी इक्वल टू 1 2 3, एंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि यूजर नेम मिनिमम 6-5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा डेटा क्लास बना दिया, ठीक है। अप टू दिस पॉइंट एवरीथिंग इज फाइन। अब उसने बोला कि मैं ऐसा यूजर बनाता हूँ कि यूजर 1 डॉट कॉपी। डेटा क्लास में क्या होता है कि हा ऐसे लिख देता हूँ। डेटा क्लास एक हैंडी मेथड प्रोवाइड करता है, कॉपी, ठीक है। कॉपी मेथड यूज करके आप कोई भी फील्ड ओवरराइड कर सकते हो, न्यू इंस्टेंस बना सकते हो। तो आप ये दूसरा यूजर जो देख रहे हो ना, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत ताकि रिकॉर्डिंग्स में भी आपको पता पड़ जाए। तो ये आप जो दूसरा यूजर्स देख रहे हो ना, उसमें देखो मैं फर्स्ट यूजर्स को कॉपी कर रहा हूँ, तो दिस विल बाईपास माय होल थिंग। यहाँ पर मैं 4 ही चीज डाल सकता हूँ, ठीक है। 4 कैरेक्टर्स मैंने डाल दिए, इट विल वर्क बिकॉज दिस इज अ लॉजिक। तो कॉपी का एक इश्यू, आई मीन ये इश्यू कोटलिन के इश्यू ट्रैकर्स पे भी रिपोर्टेड है कि इसको भाई ठीक करो। कॉपी विल बाईपास द होल थिंग, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका कोई ऑनर नहीं मान नहीं रखेगा कि नहीं भाई ये तो 5 कैरेक्टर क्यों होने चाहिए। उसने बोला मुझे ये इम्प्रूव करके दिखाओ। मेरे को ये कॉपी मेथड ऐसे मतलब ये होना नहीं चाहिए, और मेरे को क्या बोलते हैं मिनिमम 5 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए। आई डोंट केयर डेटा क्लास की क्या लिमिटेशन है, आई मीन उसने ऐसे नहीं बोला था आई डोंट केयर, बट टू से। तो फिर मैंने काफी सोचा, फिर मैंने 1-2 सॉल्यूशंस दिए, मैंने बोला नहीं यार इससे तो नहीं होगा।
फिर टू बी फ्रैंक फिर मेरे को सॉल्यूशंस पता नहीं था, तो मैंने बोला नहीं यार ये तो नहीं हो रहा है, आप बता दो कुछ। फिर उसने बताया कि ऐसा थोड़ा बहुत बताया और फिर बोला कि बाकी का आप देखना। तो मैंने लिख लिया कि ठीक है मैं देखूंगा। फिर मैंने इंटरनेट पे जाके सर्च किया इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर मैंने इसके ऊपर एक अच्छी सी लिंक्डइन पोस्ट भी लिखी थी, आप शायद मेरी प्रोफाइल में जाओगे तो कहीं पर दिख जाएगी कि हाउ टू रिस्ट्रिक्ट दिस थिंग। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, बाकी उसने जो पूछा ऑलमोस्ट मैंने आंसर दे दिए, क्योंकि वन थिंग्स इज ये कोर्स लेता हूँ ना, तो अब तो प्रैक्टिस सी हो गई है। इंटरव्यू से पहले मैं पर्सनली मैं कम प्रिपरेशन ही करता हूँ, इन द सेंस कि अब मैं कोर्स लेने के बाद मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ठीक है। अगेन नॉट टू बी सॉर्ट ऑफ एरोगेंट, बट ये अब एक लाइफ का पार्ट हो गया। तो आई मीन दैट डज नॉट मीन कि आप प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए हर किसी को, मेरे को आपको सबको। तो फिर उसकी फीडबैक ऐसी थी कि काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है, और जहाँ पर भी अगेन मतलब आपको कुछ नहीं आया तो यू वेर विलिंग टू लर्न द थिंग, आप में वो एंथुजियाज्म था कि ठीक है मैं सीख लेता हूँ सीख लेता हूँ। फिर तो वो बंदे ने फीडबैक भी अच्छी पास ऑन की, उसने मेरे दो तीन, एक ही बंदे ने 2-3 राउंड्स लिए थे इंक्लूडिंग द ऐसे, बाकी दूसरे बंदों ने दिए थे। तो उसने लाइक वीपी सबको अच्छा फीडबैक दिया कि नहीं बंदा सही है, इसको ले सकते हैं हम। तो ये ऐसे हुआ था मेरा लास्ट इंटरव्यू प्रोसेस। तो द एसेंस इज कि आप वो एंथुजियाज्म दिखाओ कि आपको आता है बोल दो, कुछ और आता है तो ऐड करो, एंड नहीं आता है तो पोलाइटली बोल दो कि अच्छा है मैं सीखूंगा। ओके ओके राजेश। ऑसम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, और इफ यू जस्ट वांट टू ऐड समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, किसी को कुछ ऐड करना है शेयर करना है, फील फ्री टू। कब से मैं ही बोल रहा था यार, आप लोग तो कुछ बोलो। भैया कभी कभी ये होता है ना, मतलब हाँ इंटरव्यूअर को लगता है कि जैसे मैं जो लास्ट जो जोमेटो वाला दिया था, तो उसमें तो मतलब कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे कर रहा था कि लगता है कि पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को जब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसके अंदर और भी डेप्थ होना चाहिए, तो वो सिचुएशन में कैसे हैंडल करें? राइट, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो मस्त क्वेश्चंस होते हैं, मेरे को तो अच्छे लगते हैं कि उसमें इट ड्राइव्स द इंटरव्यू इन अ रियली ब्यूटीफुल वे। तो मान लो कि आप उसने आपको कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप मैं बोलता हूँ कि आपको जितना पता है ना, जितना डीप तक आप बता दो। मान लो उसने, जस्ट एन एग्जांपल, उसने बोल दिया कि व्यू मॉडल कैसे सरवाइव करता है, ये ठीक है, एवरीवन नोज व्यू मॉडल सरवाइव्स द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, बट हाउ। तो जैसी आपकी कंपोनेंट एक्टिविटी है उसमें वो चेक करती है, देयर इज दिस थिंग्स कॉल्ड अ नॉन कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस। तो उस इंस्टेंस में आप ये मेंशन कर दो कि नॉन कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस में क्या बोलते हैं, जो भी चीजें दैट दैट हैज नथिंग टू डू विद द कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग द व्यू मॉडल, वो चीजें स्टोर होती है। जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है तो कंपोनेंट एक्टिविटी में या तो कहीं पर आई मीन यू नीड टू बी वेरी, आई मीन यू नीड टू बी श्योर। अगर पता नहीं है तो बोल दो कि बट कि मान लो बोल दो कि जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है तो वो चेक होता है कि ये एक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन चेंज के कारण डिस्ट्रॉय हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज के रीजन से डिस्ट्रॉय हो रही है तो व्यू मॉडल स्टोर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जो व्यू मॉडल एक जो हैश मैप होता है जो व्यू मॉडल को अपने में होल्ड करता है वो क्लियर नहीं होगा ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। तो दिस इज द रीजन वीएम सर्वाइव्स द कॉन्फ़िग चेंजेस। इतना सीनियर लोगों को, यूजुअल सीनियर लोगों को पता होता है। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और इंटरव्यूअर ने मान लो नहीं भी पूछा है, आप उसको बोलो कि ठीक है ये होता है, नॉन कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ये सर्वाइव करता है, बट इसको कॉल कौन करता है, ये जो मेथड होती है इसको कॉल कौन करता है। तो इसको कॉल करने के लिए आप एओएसपी कोड में जाके देखोगे ना, एंड्रॉइड ओपन सोर्स कोड, दैट इज अ फ्रेमवर्क कोड, ओके। तो वो आपको स्टूडियो में नहीं दिखेगा बिकॉज देर इज द एंड्रॉइड फ्रेमवर्क इटसेल्फ द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग। तो वहां पर एक क्लास है कॉल्ड एक्टिविटी थ्रेड करके। तो एक्टिविटी थ्रेड क्या करता है, ये सब सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अपन जब मेन एक्टिविटी बनाते हैं
तो एंड्रॉइड और लॉन्च करते हैं, तो दिस इज जावा क्लास, राइट? तो ये मेन एक्टिविटी जावा क्लास है। तो समवन मस्ट बी देयर हु इनिशियलाइज दिस क्लास, ठीक है? कोई तो इसको इनिशियलाइज करता होगा, ऐसे तो नहीं कि मैंने मेन एक्टिविटी लिख दिया और ये एंड्रॉइड का स्पेशल कंसेप्ट है, चलो इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इट मस्ट बी इनिशियलाइज बाय समवन। तो जो एक्टिविटी थ्रेड करके क्लास है ना, लेट मी फाइंड एक्टिविटी थ्रेड एओएसपी कोड में अगर मुझे मिल जाए ना, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये काफी अच्छा सा क्लास है जो ये सब मैनेज भैया करता है काफी। आप एओएसपी पे भी कंट्रीब्यूट करते हो क्या? नहीं नहीं भाई उतना नहीं किया मैंने, बट आई नो द थिंग। एओएसपी में कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट आई नो बीट ऑफ द थिंग्स कि यहाँ पर ये चीजें पड़ी हुई है, अगेन जस्ट बाय लर्निंग एंड ऑल दो थिंग्स। तो ये चीज, ये जो एक्टिविटी थ्रेड होता है ना, उसमें एक दूसरा क्लास आई थिंक लोकल थ्रेड या ऐसा करके कुछ नाम था, आई डोंट एक्जेक्टली रिमेम्बर द नेम। तो ये चीजें इस कंपोनेंट एक्टिविटी वाला को कॉल करती है, ठीक है? चेन चेन ये काफी लंबी चेन है, ठीक है? यू हैड आई थिंक 8 to 10 हॉप्स बिटवीन दिस थिंग। तो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन कि एक्टिविटी थ्रेड पे जाके रुकता है। तो ये चीज भी आपने ऐड कर दी तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि नहीं, इस बंदे को काफी पता है। और पता है तो बता दो, अगर नहीं पता है तो जितना एटलीस्ट पता है उतना बता दो, और फिर आप उसको पूछ लो कि मुझे इतना पता है, इससे भी आगे कुछ होना चाहिए, मेरे को आइडिया नहीं होना चाहिए, बट मेरे को अभी इस मोमेंट पे पता नहीं। एंड फिर आप उसको भी बोल सकते हो उसको पता है तो आप थोड़ा बहुत बता दो। मेक सेंस? या मेक सेंस, गॉट इट। ठीक है। और जो भी मैंने बात बताई, देखो आई बी वेरी फ्रैंक, जो भी मैंने बात बताई इट रियली इम्प्रूव्स योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बट इट डिपेंड कि कौन बंदा इंटरव्यू ले रहा है। मान लो कोई बंदा अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गया है और उसको बोल दिया कि तेरे को दिन में 5 इंटरव्यूज लेने आज, ठीक है? और आप एज ए इंटरव्यू गए, तो आप कितना भी एंथुजियाज्म दिखाओगे, उसको तो सोचेगा यार क्या है, एक तो ऑलरेडी काम में बिजी था, ये पकड़ा दिया। हो सकता है उसका रिस्पॉन्स अच्छा ना हो, तो फिर आप बोलोगे भैया ने तो ऐसे बताया था बट ये तो कुछ मिल नहीं रहा। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल। यूजुअली इससे इम्पेक्ट होता है, बट ऐसा कोई सीन आ जाए, ऐसा कोई कोई केस आ जाए, और फिर उसमें अपने इंटरव्यूअर के पर्सनल प्रेफरेंस भी होते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, बट जनरली ये चीज अप्लाई होती है। जनरली आप ये चीज अप्लाई करोगे, कन्वर्सेशन स्टाइल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। आप खुद नोटिस कर लेना नेक्स्ट टाइम जाके। और दूसरी एक चीज की इंटरव्यू देने से मत डरो। मतलब आई नो बोलने में इजी है, इम्प्लीमेंट करने में वेरी डिफिकल्ट। बट एक बात आप सोचो कि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो आपको कुछ जानता नहीं है। मान लो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जीरो। आई नो यू ऑल ऑफ यू आर टैलेंटेड, और मेरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आया इन अ वर्स्ट केस, ठीक है? अच्छे केस में तो मेरे को सब कुछ आ जाएगा। इन अ वर्स्ट केस मेरे को एक भी आंसर नहीं आया, उससे क्या होगा? एक तो इंटरव्यूअर मेरे को जानता नहीं, तो ऐसा नहीं कि मेरी वैल्यू डाउन हो गई, साला इस बंदे को तो कुछ पता नहीं। वो भूल जाएगा 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद मैं भूल जाऊंगा। इससे आपकी इम्पैक्ट ऐसी नहीं होगी, बट आपको सीखने को मिल जाएगी कि ठीक है उसने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे नहीं आते। आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो, उसने ऐसे क्वेश्चन थ्रो करे जो मुझे नहीं पता, तो लेट मी गो टू द इंटरनेट, लेट मी फाइंड आउट, ताकि अगर कल कोई दूसरा बंदा पूछे तो मैं आंसर दे पाऊँ। तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू से डरना नहीं चाहिए, स्पेशली। और आप आपका डर दोनों साइड से, आपको भी नहीं डरना चाहिए, और अगर इंटरव्यूअर अच्छा है जो ऐसे अच्छे से आपको जॉयफुल फील कराता है, तो आई गेस आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा बन जाएगा। काफी सारी कंपनीज मैं काफी सारी बार बोल भी चुका हूँ, और मेरी पास्ट में भी काफी ऐसे कंपनीज में इंटरव्यूज हुए थे जिससे मुझे लगा कि नहीं यार ये तो इंटरव्यू था ही नहीं, इतनी मतलब अच्छी सी फ्रैंक कन्वर्सेशन थी इंटरव्यूअर के साथ। मजा आता है उन लोगों के साथ। ठीक है, आई थिंक दिस विल हेल्प यू। एनी मोर क्वेश्चन? यस, नो देन
ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन वाइंड अप द सेशन, राइट? All okay, thank you, and have a good day. Thank you for taking your time on the Sunday. Rajesh, And yes, I please. have one thing. Yeah, sorry to Yes. interrupt. So I wanted to understand, like, because there will always be something you don't know. So I feel like I'm not ready for interview, and that's one thing about the confidence I think I might lack. And there are Hmm. because I like that's because I think I'm not very well versed with the technical stuff. That's also one person because I see my peers around me, they are very well known. And I also try to cover that gap, but still that gap exists. And I think it takes time, but still any idea on this, like how we can, bridge this gap. Right. So what I would say is even if you feel that your peers are they are good in the technology and you may be lacking somewhere, I would say and go and give the interviewer, because see, uh, try to think from this perspective. Whatever I know, there are people who don't know the things that I know. There are people who knows far better than what I know. Okay, so I am always in between. You, me, Sitam, Shubham, whatever. You are always in between. There are people who knows less than you. There are people who knows better than you. ठीक है, तो यू आर ऑलवेज एट द, आपको जितना पता है, ऐसे भी लोग हैं जिसको आपके जितना भी नहीं पता है. तो देखिए, सी, interview is not about expecting that, and no interview will expect that you know the 100% whatever he is asking. The ratio is around 60 to 70%. ठीक है, बाकी 30-40% that can be fine. So what you can do is definitely practice is important, knowing the concept is important. So whatever the things you know, go sit in the interview and answer the things that you already know. If you encounter something that you don't know, then what you can do is you can again note down these things and go and learn these things, uh, along with learn other things that you don't know yet. And that is essential for the interview. You will find a lot of GitHub repositories and all those things जहाँ पर लिखा है कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं. यू डोंट नीड टू सी, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग. नोबडी नोज एवरीथिंग. जितना भी आपको पता है वो अच्छे से पता करो एंड गो एंड रिप्रेजेंट दिस. देखो, अगेन, आपको कम चीज भी पता है ना, बट आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका उससे अच्छा है ना, तो इंटरव्यूअर विल बी इम्प्रेस्ड कि ठीक है, बंदा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. उसको लाइक प्रैक्टिकल वर्ड से एक्सप्लेन करो. मैं वही करता हूँ. उसको थियोरेटिकली आप जाने जाओगे ना तो थोड़ा बोर हो जाएगा. उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से उसको कनेक्ट करने की ट्राई करो, एक्सप्लेन करो, तो इस एक्सप्लेनेशन का उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. तो आई वुड सजेस्ट कि या डेफिनेटली प्रैक्टिस द थिंग that you personally feel that you are lacking it, but do not afraid just due to these reasons कि okay, there are folks who knows better than me and I don't know like them. Go and give the interview. ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा कि आपको नहीं आएगा तो सीख लेंगे ना. वो अप्रोच के साथ आई गेस यू कैन गो एंड गिव इट अ ट्राई. And I have one more thing. Since जैसे मान लीजिए, like we are front end, basically a mobile developer, not a front end developer. But राइट. so do we, like for a senior, like let's say for SD2 or SD3, not for SD3 right now. But do we need to prepare for system design because that's mostly for backend stuff, right? So do people ask about it? राइट. ठीक है, I'll tell you one thing. There is a misconception about the system design, and I'll try to explain the thing. So see, the things is for the SD2 or SD3, the expectations is okay, bit more than usual stuff. And first, what is system design? It's not like that system design is just for the backend. System design means how a particular system works. ठीक है, एंड्रॉइड के केस में मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. काफी सारे लोगों को ये है कि सिस्टम डिजाइन इज फॉर द बैक एंड. एंड्रॉइड के केस में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हाउ वुड यू डिजाइन a download manager that Android is using, right? That is system design. How would you create a library that does the networking?
Retrofit, that is the system design. How would you create a library that parses the JSON? That is the system design. Moshi and JSON. How would you create a library, anything that loads the image and caches the image? That is Glide. Okay, that is system design. तो सिस्टम डिजाइन रिफर करता है कि हाउ यू बिल्ड द कंपोनेंट, उसका बैकएंड से या फ्रंट एंड का एंड्रॉइड से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो सारे प्लेटफॉर्म से जहां पर हम उसको बनाते हैं। मान लो ग्लाइड जिसने बनाया उसने कुछ तो सोचा होगा ना कि मैं कैशिंग कैसे दूंगा अपनी लाइब्रेरी में, फिर उसने एंड्रॉइड स्पेसिफिक कुछ किया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उसमें कैशिंग कैसे दूंगा। रेट्रोफिट जिसने बनाया स्क्वायर वालों ने, जैक वार्टन एंड ऑल दो थिंग, कुछ तो सोचा होगा ना कि भाई ये इंटरफेस देंगे तो फिर इसके उसने एनोटेट कर दिया इंटरफेस को, उसको एक्चुअल कोड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन से क्लासेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये क्लास एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे, दैट इज एसेंशियली योर सिस्टम डिजाइन। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम डिजाइन बैकएंड का ये या फ्रंट एंड का ये जावा वाले को भी पता होना चाहिए। सेम सेम अप्लाइज टू डीएसए। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि डीएसए एंड ऑल दो थिंग्स ये बैकएंड का नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स है। एंड्रॉइड ले लो, रिएक्ट ले लो, जावा ले लो, स्प्रिंग बूट ले लो, है तो कंप्यूटर साइंस ही ना। तो ये कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स है, आप इसको सीखोगे तो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको सिस्टम डिजाइन पता है कि ऐसे ऐसे मेरी सिस्टम काम करनी चाहिए। मान लो आपको पता है कि ठीक है एक साथ 100 डाउनलोड, आपको एक्सपीरियंस, मान लो आपने सीखा, आपको पता है कि ठीक है एक साथ 100 डाउनलोड्स तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि इट विल इंक्रीज द लोड ऑन सिस्टम। तो जब आप डाउनलोड मैनेजर बनाएंगे तो इस टाइम इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और आप एक क्यू बनाएंगे। जितने भी डाउनलोड्स आएंगे आप क्यू में डाल दो, एट अ टाइम लेट्स से 5 और 10 डाउनलोड को रनिंग करो, बाकी सब क्यू में डाल दो। तो दैट इज व्हाट एसेंशियली सिस्टम डिजाइन इज। सिस्टम डिजाइन इज हाउ योर सिस्टम वर्क। ठीक है, तो मैं ओके एंड टू बी फ्रैंक मैं ये भी एग्री करता हूं कि सिस्टम डिजाइन के लिए एंड्रॉइड स्पेसिफिक रिसोर्सेज कम है, ठीक है, और दैट इज अ रियलिटी। बट मेरे ख्याल से आप सिस्टम डिजाइन सीखो इस पर्सपेक्टिव से कि सिस्टम डिजाइन कैन अप्लाइड एनीवेयर। और आप देखोगे ना तो सिस्टम डिजाइन क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड के भी कुछ मिलेंगे। मैं सोच रहा था इस पे कि ऐसा कुछ तो बनाए, क्योंकि काफी बंदे की एक कंप्लेन है कि एंड्रॉइड से नहीं मिल रहा है। तो एक तो देखो मेरी आइडियोलॉजी अलग है लोगों से, इन द सेंस की सिस्टम डिजाइन कुड बी एनीथिंग, बट हाँ अगर आपको एंड्रॉइड में ही अप्लाई करना है तो मैं सोच रहा था ऐसा कुछ करने का ताकि इट कैन हेल्प पीपल। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, SD1 के लिए आई वोंट से सिस्टम डिजाइन, बट मान लो 3 के लिए एटलीस्ट इन बिटवीन 2 एंड 3 आपको सिस्टम डिजाइन अच्छा आता है तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज। आप ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाओगे तो दे में आस्क यू सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन। तो अगर आपने उस पर्सपेक्टिव से सोचा होगा ना कि ठीक है मैं ऐसे कैसे बनाऊं, तो आप सोचते जाओगे प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऐसे होता जाएगा, और फिर उसको आप एंड्रॉइड पर्सपेक्टिव में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आप कर लो सिस्टम डिजाइन SD2 एंड 3 के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब कंपोनेंट्स बनाओगे तो ये चीज ऐसी, ये चीज सिर्फ ऐसी नहीं है कि आपको रट्टा मार दिया और बना लिया। आप जब यूजुअल आपको कोई बोलेगा नहीं, आपका सिस्टम नहीं बोल, सीनियर नहीं बोलेगा कि तू भाई ये यूज कर ले। ये जो आपका नॉलेज है उसको आप जब कोई कंपोनेंट्स बना रहे हो तब आप उसको यूटिलाइज करो, तभी वो उसका यूज होगा। बिकॉज नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज नथिंग, राइट। तो आपके पास जो नॉलेज है सिस्टम डिजाइन का, आपने जो भी सीखा वो कंपनी में जाके आप कोई कंपोनेंट्स बना रहे हो तब वो अप्लाई करो, देन यू विल मोर रियलाइज कि अच्छा ठीक है ये अब तक तो मैंने थियोरेटिकल सीखा था बस प्रैक्टिकली, बट मैं इसको ऐसे यूज कर सकता। ठीक, गॉड, अगर आप बनाओगे तो मेक इट ऑन यूट्यूब चैनल। हाँ ठीक है। राइट राइट। यूट्यूब में यार ऐसा है कि यूट्यूब कंटेंट्स के लिए, कंटेंट रिफाइनमेंट के लिए काफी टाइम चाहिए मेरे पास। आई एम बीट शॉर्ट ऑन टाइम, बट ठीक है, हाँ आई ट्राई। मैं भी सोच ही रहा था यूट्यूब काफी लोग वीडियो कंज्यूम करते हैं और उसमें इजी भी होगा। तो अगर मैं कुछ सिस्टम डिजाइन का कुछ बनाता हूँ तो यू आर इन कम्युनिटी नहीं, तो मैं शेयर कर दूंगा या फिर मेरे लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर दूंगा।
ठीक है, I think that answered your question. Any more question? Anyone? Anything else? No, Any but follow-up? I will be in touch with you. Like अगर कुछ रहा तो I will message. Sure. Definitely. Anytime. ठीक है। लिंक्डइन और ट्विटर पे भी काफी सारे बंदे हैं जो ये शेयर करते हैं इसकी चीजें, आप उनको फॉलो करो, वो जाके देखो तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। और मैं भी जब भी करूंगा तो यू कैन फॉलो माय लिंक्डइन पोस्ट। ठीक है, नो मोर क्वेश्चन राइट? Thanks for the wonderful session. Yep. Yes, you want to say something, Abhinav? No, I was saying just thank you. Oh, awesome. Thank you, Rajesh, for your time. Yep, thank you, And Shubham. valuable Thank you. inputs. Thank you so much. Thank you. Awesome. Yep, Okay. thank you. Have a Bye. good day. Take care. Bye-bye. Bye. See you.